सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के कुछ 50 क्वेश्चंस के ऊपर। एंड इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक 50 क्वेश्चंस का सेट जो था वो बना के रख दिया है, मतलब ऑलरेडी आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, चैनल के ऊपर मिल जाएगा या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which article empower the president to impose financial emergency? So right answer of first is B, which is article 360. Next question is the president of India has the discretionary power to. So right answer of second is B, which is appoint the prime minister of India. Next question is the attorney general of India has the right of audience in. So right answer of 3 is C, which is any court, sorry, any court law within India. Okay, तो ये मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बेस्ट टॉप लॉयर होते हैं गवर्नमेंट के. Next question is which article of Indian Constitution direct the state government to organize village panchayat? So right answer of fourth is B, which is article 40 is the right answer. Next question is CAG of India appointed by. So right answer of fifth is C, which is President of India. Okay. Next question is where do we find the idea of Indian democracy? So right answer of sixth is C, which is in the preamble. Okay. Preamble is the introduction of our constitution. Next question is where the presiding officer is not the member of that house. So right answer of seventh is A, which is Lok Sabha. Next question is chairman of PAC, which is Public Account Committee of Parliament, appointed by. So right answer of eighth is D, which is Speaker of the Lok Sabha is the right answer. Next question is residuary power under the Indian Constitution means. So right answer of ninth is D, which is the power which can be exercised by both the union government and the state government. Okay. Next question is how many total members can be nominated by president in both house of parliament? So right answer of 10th is C, which is 12. ओके अगर हम मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा की पर्टिकुलरली बात नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में 2 लोगों को अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा में लाइक 12 लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो मिला जुला के यहाँ पे ये 14 हो जाता है. तो राइट आंसर इज ए, विच इज 14. यहाँ पे बोथ हाउसेज लिखा हुआ है और मैंने आपको 12 आंसर बताया था राज्यसभा का. सॉरी फॉर दैट, इसका राइट आंसर 14 है, विच इज ए. ओके, बट इस चीज़ को याद रखना है कि लाइक अगर किसी पर्टिकुलर हाउस की यहाँ पे बात कर देगा लाइक राज्यसभा की, तो वहाँ पे 12 अपॉइंट होते हैं. एंड अगर लोकसभा की बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ 2 होते हैं. 2 कौन से होते हैं? 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं. और राज्यसभा में जो 12 जो जो नॉमिनेट होते हैं वो लाइक स्पेशल फील्ड साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ों से होते हैं. ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा. दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे बोथ हाउसेस, तो ये 14 बन जाता है. Next question is who preside over the joint session of Indian Parliament? So right answer of 11th is B, which is Speaker of Lok Sabha. Is the right answer. Next question is for which of the following commission there is no provision in Indian Constitution? So right answer is right answer of 12th is A, which is Planning Commission. Moving to the next question. Which article of Indian Constitution provide equal opportunity for all citizens in public employment? Okay, यहाँ पे public employment की बात की गई है. So right answer of 13th is B, which is Article 16 is the right answer. Okay. Okay, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे. Which of the following is the feature of presidential form of government? So right answer of 14th is D, which is all of these. तो यहाँ पे सब होता है like fixed term of the office, no overlap in membership and popular election of the president. Okay, तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं. यहाँ पे all of the above इसका आंसर होगा. So moving to the next question, which one of the following is opposite to democratic state? So right answer of 15th is C, which is despotism. यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब पता है, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री. मोनार्की मतलब जहाँ पे राजशाही चल रहा हो. सोशलिज्म का मतलब आप बताओ क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इसका 15th का राइट आंसर है डेपोजिज्म. ओके, डेपोजिज्म का मतलब जाके सर्च करो क्या है, क्योंकि आप खुद से जो सर्च करोगे ना वो याद भी रहेगा आप लोगों को. ठीक है. So moving to the next question, the concept of concurrent list in the Indian Constitution is borrowed from the Constitution of. The right answer of 16th is C, which is USA is the right answer. Next question is to which category right to vote belongs? So right answer of 17th is D, which is it is a political right. Okay. Next question is under which article of Indian Constitution can an individual can move to the Supreme Court directly in case of violation of fundamental right? So right answer of 18th is C, which is Article 32. Article 32 क्या है? Right to constitutional remedy.
ओके, तो इसका मतलब मैंने बता दिया डेफिनेशन भी क्या है। तो इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एंड इवन आर्टिकल 32 में ही सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो एक रिट इशू कर सकता है। लाइक रिट आपको पता ही होगा, 5 तरीके के रिट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 है। आप लोग बताइए कि हाई कोर्ट के पास कौन सा है। ओके, हाई कोर्ट के पास कौन सा है, वैसे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप बताओ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Constitution of India came into, so right answer of 19th is A, which is 1950, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमें रिपब्लिक डे भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। और भी कई सारे रीजंस हैं कि लाइक हमने 26 जनवरी को ही क्यों रखा है, बिकॉज ऑफ लाहौर सेशन में हमने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंट की मांग की थी, तो इसलिए लाइक 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डे है इंडिया के हिसाब से, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। ओके, next question is, who was the chief election commissioner of India? So right, who was the first chief election commissioner of India? So right answer of 20 is D, which is Sukumar Sen. Sukumar Sen is the right answer. Okay, next question is, which among the following is the constitutional body appointed by the president every 5 years to review center state financial relationship? So right answer of 21st is A, which is finance commission is the right answer. Next question is, which among the following was the strength of Lok Sabha after India's first general election? So right answer of 22 is A, C, which is 489 is the right answer. तो फर्स्ट इलेक्शन में हमारे पास 489 मेंबर्स थे। अभी बताओ लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, तो मैं अभी बता देता हूँ यार, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं खुद यहाँ पे बता दूँ। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अभी 545 है। ओके, 545 है। एंड अगर राज्यसभा की हम बात करें तो यहाँ पे 245 है हमारे पास। ओके, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 2 और 5 का फर्क है, एक्सेप्ट 45 दोनों में सेम है, तो आप याद रख सकते हो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वॉज स्टैब्लिश? So right answer of 23 is D, which is 1992 is the right answer. Next question is, which among the following amendment act is also called as a mini constitution? So right answer of 24th is B, which is 42nd Amendment Act 1976. इसमें बहुत सारी चीज़ों को अमेंड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट लाइक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें अमेंड करके एड अप किया गया था। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ों को भी ऐड कर दिया गया था। क्या क्या ऐड किया था वो आप लोग पता करो क्या क्या था इसमें, जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। Next question is, in which year Daman and Diu were separated from Goa? So right answer of 25th is C, which is in 1985. Next question is, from which constitution India has borrowed the provision related to amendment constitution? So right answer of 26th is B, which is South Africa. सोच लो हमने साउथ अफ्रीका तक से बहुत सारी चीज़ें ली है, लाइक ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जिनके बारे में नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन वहाँ से मैंने बोरो कर लिया है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, नहीं यार, नाम पता होगा, ऐसा नहीं सोच सकता, sorry for that. So next question is, the election commission of India is not concerned with the election of to the, so right answer of 27th is C, which is panchayat and municipality in the state is the right answer. So next question is, which among the following freedom guaranteed by the Constitution of India include the right to know and the right to be informed as implied rights? So right answer of 28th is A, which is freedom of speech and expression is the right answer and the right article. Next question is, on which date the government of India adopt the national anthem of the country? So right answer of 29th is B, which is January 24, 1950. तो यहाँ पे नॉट ओनली नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, उसके बाद नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री, जितने भी नेशन से रिलेटेड है ना, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। सबके डेट्स आपको पता होना चाहिए विथ लाइक मतलब डेट्स, नॉट ओनली ईयर, आपको मंथ एंड इवन पर्टिकुलर डे आपको याद होना चाहिए किस दिन हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट जो अपना आएगा उसमें पहले के 10 क्वेश्चन यही सब रखूंगा एंड उसके बाद देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 30 इज सी, विच इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो ये सुन के ही गलत लग रहा है। ओके, बाकी सही है। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल बात सही है। मेजॉरिटी पार्टी रूल ये भी सही है। डिसोल्यूशन ऑफ अ लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है, अपर हाउस का यानी कि राज्यसभा का नहीं हो सकता, लोकसभा का हो सकता है। तो बाकी सब सही है, सी गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड on the line of which country's prime vice president? So right answer of 31st is C, which is America. तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद बोलते हैं या फिर
क्या बोल सकते हैं पोजीशन है, वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया या फिर वहीं से हम लेके आए उठाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटी? सो राइट आंसर ऑफ 32 इज सी विच इज होम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। कौन है हमारे होम मिनिस्टर अभी? इट्स अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा? सो राइट आंसर ऑफ 33 इज सी विच इज उत्तर प्रदेश। कितने हैं, चलो बता ही देते हैं। कैसे मतलब डिफाइन होता है कि लाइक कितने सीट्स इनको मिलेंगे लोकसभा के? तो देखो बेसिकली बात यहाँ पे हो जाती है कि आपकी कितनी भी मतलब सिंपल मैनर में जितना आपका पॉपुलेशन रहेगा उस हिसाब से आपको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो अगर बिहार का भी बहुत रिलेटेड है इससे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास 80 है और इनकी जनसंख्या जो है वो 22 करोड़ है, ओके, 22 करोड़। और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या इनकी है हमारे मतलब बिहार के लोगों की वो 11 करोड़ है। तो बताओ कि इसमें सीट्स कितने होंगे? तो डेफिनेट सी बात है इसका हाफ ऑफ होगा 40। तो ये चीज़ें होती हैं इस तरीके से, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है एंड लाइक मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से ही आपको सीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं और ऐसा यहाँ पे दिया हुआ कि सबसे ज़्यादा इसी के हैं। So next question is which constitutional amendment empower the administrator of certain union territory to promulgate ordinance? So right answer of 34th is B, which is 27th constitutional amendment. Next question is according to which constitutional amendment defeater have no more protection on ground of split? So right answer of 35 is A, which is 91st is the right answer. Next question is in how many categories are the parliamentary standing committee classified? So right answer of 36 is C, which is six categories. ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज है, ओके। हु डिसाइड द सैलरी अलाउंस प्रिविलेज लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सो राइट आंसर ऑफ 37th इज सी, विच इज पार्लियामेंट, ओके। पार्लियामेंट बहुत बड़ा स्टेट है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी ऑलमोस्ट सेम पावर आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी ऑलमोस्ट सेम पावर रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सब नीचे हो जाता है। Okay, now moving to the next question. What is the maximum age until which a Supreme Court can hold office? So right answer of 38th is C, which is 65 years old. जब आप पॉलिटी लाइक शुरू से लेके एंड तक 2 बार पढ़ लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आने लगेंगे। लाइक सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को भी सुना सकता है कुछ भी। सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, लाइक कोलोजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ से आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है आपको पता चलेगा, बट आपको उसके लिए पॉलिटी को बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत नॉर्मल तरीके से आप पढ़ लोगे ना तो उसके बाद ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आने लगेंगे, लेकिन वही पढ़ना पड़ेगा एक बार सॉरी एटलीस्ट कम से कम 2 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा पॉलिटी को। So moving to the next question, who remarked the Supreme Court of India has more power than any other Supreme Court in any part of the world? So right answer of 39 is C, which is Aladi Krishnaswamy Iyer is the right answer. Next question is what are the limitation of the sovereignty of Parliament or in India? So right answer of 40 is A, D, which is all of the above, because written constitution भी है, फेडरलिज्म भी है एंड जुडिशियल रिव्यू भी है हमारे पास। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देता है तो अपने फैसले को ही वो वापस से मतलब गो थ्रू कर सकता है एंड उसको चेंज कर सकता है, ठीक है, तो उसके पास पावर है बढ़िया दम। So next question is the Indian National Congress made demand for the first time of a constituent assembly in. So right answer of 41 is A, which is 1934 is the right answer. Moving to the next question, which one of the following article of the Indian Constitution makes the provision to promote international peace and security? So right answer of 42 is C, which is article 51 में यहाँ पे mention है promotion of international peace and security, okay? इसकी वजह से हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। वैसे तो इंडिया वैसे मतलब न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है स्टिल, बट इस आर्टिकल के थ्रू भी हम किसी भी कंट्री के ऊपर ऐसी मुंह उठा के अटैक नहीं कर सकते। जैसे हम लोग दिन भर बोलते रहते पाकिस्तान को मार दो, ऐसे नहीं हो सकता ना, कुछ भी नॉर्मल बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 43 इज ए, विच इज डॉक्टर बी.एन. राव इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ और मतलब मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ जगहों पे लाइक ज़्यादा नहीं, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस में मैंने और यहाँ पे मेंशन किया कि लाइक ये किस जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये किस ईयर में या फिर किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया लाइक वो CDS 1995 में पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया था इतना पहले भी। तो अगर आपको लाइक ये चाहिए कि लाइक प्लीज़ वहाँ पर मैंशन कर दो कि जो आप क्वेश्चन बता रहे हो किस एग्जाम में आया था, किस ईयर आया था, तो डेफिनेटली मैं ये कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। So moving to the next question, the Constitution of India was enacted by the
Constituent Assembly set up? So right answer of 44th is B, which is under the Cabinet Mission Plan 1946 is the right answer. Next question is the Constituent Assembly which framed the constitution of for independent India was set up in. So right answer of 45th is B, which is 1946 is the right answer. Moving to the next question. यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे. So who preside over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? So right answer of 46 is A, which is Sachidanand Sinha is the right answer. Next question is who among the following was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? So right answer of 47th is D, which is B.R. Ambedkar. बहुत ही easy question है, बहुत ही important question है. Next question is which of the following was adopted from the Mauryan dynasty in the emblem of government of India? So right answer of 48th is A, which is 4 lions. सबसे important चीज, इवन आपके पासपोर्ट के ऊपर भी एम्बलम का ही लाइक फिगर बना हुआ रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the office of Governor General of India was created by. So right answer of 49th is C, which is Government of India Act 1858 is the right answer. Last and next question is who among the following is known as the father of Indian Constitution? Again the easiest question and the important one. अगर कोई क्वेश्चन इजी होगा तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी होगा. So right answer of 50 is A, which is Dr. B.R. Ambedkar साहब. Okay, so this is it for this video. बट मैं अभी और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली टॉपिक वाइज में लेके आने वाला हूँ. अभी बस मैं सोचा था कि ऐसे ही लेके आ जाएं, तो मे बी एक और सेट ऐसे ही आ जाएगा, बट फ्रॉम उसके बाद से या फिर फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई ट्राई कि मैं टॉपिक वाइज लेके आऊँ, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में या फिर इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अलग अलग वीडियोज़ में करके लेके आता रहूँगा. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.